Good morning, students. Hope you will be fine at your respective places. Last time we were discussing this environmental factors, various environmental factors, और उसमें हमने ये उठाया था कि that these environmental factors or ecological factors that have been categorized, that have been differentiated into two groups. First one is the climatic factor, second one is the edaphic factor. We were discussing this, what is the effect of the various climatic factors, and we have discussed the atmospheric gases. We have discussed this slide. Today we are going to discuss the temperature. Before going into detail what is the effect of this temperature on the organisms, first let us discuss what do we how we can define the temperature. Temperature can simply define it as the degree of hotness or coldness of a substance, of any object. So how we can define the temperature? Temperature can simply be defined as the degree of hotness or coldness, how much a substance is hot, how much a substance is cold. That is called as the temperature. And this temperature is one of the most important, rather critical, what we call as this environmental factor, which influences which controls the various metabolic activities of an organism. The various metabolic what we will see जो भी in the various metabolic activities of an organism, अगर हम बात कर लेंगे उनकी, that they are directly or they are indirectly dependent on the temperature. And जो मैक्सिमम एक्टिविटी है, अगर हम देखेंगे मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर हम बात कर लेंगे, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द, अगर हम देखेंगे द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच जो इसकी होगी, एट विच द मेटाबॉलिक रेट विल बी एट इट इज मैक्सिमम. सो वी विल सी जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, एक्टिविटीज है इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उनकी जो दे विल फंक्शन, जो हम देखेंगे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इनमें होगा, एट विच जो मेटाबॉलिक रेट जो होती है इट विल बी एट इट इज मैक्सिमम. एज वी मूव what we will see the vertical gradient, अगर हम कहेंगे as we move from the surface of the earth towards upward, we will see that there is a decrease in the temperature. A well-known proverb is there: the higher you go, the cooler it is. As we move upwards, we will see there is that decrease in temperature, and that decrease in temperature, अगर हम geography में देखेंगे, it is called as the lapse rate. The vertical temperature gradient over the earth's surface, that is called as the lapse rate. And it has been found that to every what we call as to every increase of 1000 meter above the earth's surface, there is the drop of 6.5 degrees centigrade of temperature. That means जितना हम ऊपर चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन फाउंड दैट व्हेन वी मूव अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स अपवर्ड्स, व्हेन वी मूव 1000 मीटर, देयर इज a decrease of temperature about 6.5 degrees centigrade. That there is a drop of temperature, and that temperature is drop of वो कितना होता है 6.5 degrees centigrade. When we move, जब हम ऊपर चले जाएंगे up to per 1000 meter, there is this drop of 6.5 degrees centigrade. So we can write this like 6.5 degrees centigrade per 1000 meter. Now there are various factors on which the temperature of a substance depends. It depends upon, there are various factors. That is the latitude, that is the altitude, that is the topography, that is the vegetation, and that is the slope.
So we will find we have got various geographical factors which determines the temperature of a place. First one is the latitude, that is the altitude, that is the topography, that is the vegetation, that is the slope, and all these factors that determine the distribution of that affect the distribution of organism on the earth's surface. If I will give an example of this latitude, लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे, that is this earth surface. If we see the surface of the earth is geoid, 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 and the term geoid means that अगर हम इसकी definition समझाने की कोशिश करेंगे, that this surface of the earth अगर हम देखेंगे, it is somewhat spherical in the middle and at the poles it is somewhat flat. Between अगर हम बात करेंगे, between अगर हम देखेंगे, it is what we call the spherical, and at the poles this surface of the earth it is flat, and that surface is called as the geoid. It is not elliptical, it is not what we call as spherical. What it is geoid. Now there is an imaginary line which divides the earth into two different parts, and that is called as an equator, which runs from east to west. And then there are 90 latitudes towards the North Pole. There are 90 latitudes towards the South Pole, and overall we have got total 181 latitudes, and these including this equator, and these latitudes are parallel to each other. These are parallel to each other, and these are measured in degrees. Now what we will see, we have got some on the basis of the temperature. We have got 5 main important latitudes on the earth's surface. First one is equator. Second one, we have got Tropic of Cancer. Third one, we have got Arctic Circle. Fourth one, we have got what we call as Tropic of Capricorn. And last one, we have got Antarctic Circle. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, इनका जो मेजर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23 1/2 डिग्री, इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए हम लिखते हैं नॉर्थ. आर्टिक सर्कल का हम मेजर लिखते हैं 66 1/2 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हम लिखते हैं 23 1/2 डिग्री साउथ. एंड एंटार्क्टिक सर्कल का इट इज 66 1/2 डिग्री साउथ. These two are, that is Tropic of Cancer and Arctic Circle, they are found in the northern hemisphere. These two, they are found in the southern hemisphere. And this is the equator, it is measure is 0 degree. ये कहा जाता है, what it has been found, कि these 5 different latitudes, these are parallel to each other, they divide the earth's surface into different, these are not the permanent, but these are man-made, and what these are imaginary lines, and these imaginary lines, they have divided the earth's surface into different temperate zones. What we will see like this is the equator, very good. This is the Tropic of Cancer, this is the Arctic Circle, this is the Tropic of Capricorn, this is the what we'll call as the Antarctic Circle, this is the South Pole, this is the what we will call as the North Pole. Now
अगर हम डायग्राम, अगर हम इसके मेजरमेंट लिखें, दिस इज 0 डिग्री, it is 23 1 by half degree north, it is 66 1 by half degree north, it is 23 1 by half degree south, it is 66 1 by half degree south. This region between the Tropic of Cancer and this Tropic of Capricorn, it is called as the equatorial region. Between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Now, this region, Tropic of Cancer to Arctic Circle and Tropic of Capricorn to Antarctic Circle, it is called as temperate zone. Then this last one, from the Arctic Circle to North Pole, and from this Antarctic Circle to this South Pole, this one, this greenish, this is called as frigid zone. This is called as frigid zone. How this affects the distribution of the organisms on the Earth's surface? What we will see in this frigid zone, the temperature conditions are very extreme. This region, it mainly, अगर हम बात कर लेंगे, remains below this, it is sub-zero temperature यहाँ पर रहता है कि that almost entire the year it is covered with, जो यहाँ पर precipitation होती है, that is in the form of snow, and जो यहाँ पर जो summer होता है, it lasts for 1 or 2 weeks. During those 1 or 2 weeks, what we will see, small lichens or mosses, they are found. लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन दिस टेम्परेट रीजन, व्हाट वी विल सी, द समर्स आर वेरी मच हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी मच कोल्ड इन दिस टेम्परेचर. That is the very diverse, and what we will see in this part, in this equatorial region, that यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि that there is the equable type of temperature throughout the year. That means throughout the year यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो temperature है it remains the same throughout the year. उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं, if it is the sun, the rays of the sun in this region, they fall almost slant. They are slanting. They take less time to reach the surface of the earth, and they are very much hot. That results in the very high temperature in this region. And ये भी देखा गया है in the late afternoon में हम क्या देखते हैं, almost it rains. There is the thunderstorm, there it rains heavily almost every day, and with that what we will see कि जो यहाँ पर वेजिटेशन है इट इज वेरी डेंस. अब जो यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं, दे आर मेनली दैट रेन फॉरेस्ट. जो इनकी कैनोपी देखते हैं हम, दैट इज द टॉप ऑफ दिस, कि वो इस तरह होता है कि वो झुक जाते हैं. दैट डज नॉट अलाउ द सन's रेज टू रीच द ग्राउंड फ्लोर. गर्मी की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं इवापोरेशन ज्यादा हो जाती है. लेकिन इन द लेट आफ्टरनून, व्हाट वी विल सी, इट ऑलमोस्ट रेन्स एवरी डे, एंड दैट हाई ह्यूमिडिटी एंड दिस मॉइस्चर जो यहाँ पर हम देखते हैं कि दैट रिजल्ट्स इन द वेरी डेंस फॉरेस्ट्स. अब जो फॉरेस्ट्स वहाँ पर पाए जाते हैं कि उनमें हम देखते हैं उनकी जो कैनोपी होती है वो इतनी साथ होती है कि दैट डज नॉट अलाउ दिस सन्स रेज टू रीच द अर्थ सरफेस. एंड यहाँ पर हम जो भी एनिमल्स देखते हैं, दे आर मेनली द ट्री डिवेलपर्स. अब यहां पर टेम्परेट में, अब दो सन्स की रेज को बहुत टाइम लगता है, एंड व्हेन दे टेक्स मोर टाइम, दैट सन्स रेज दे लॉस, उनमें से एनर्जी लॉस हो जाते हैं, हीट लॉस हो जाते हैं, दे आर नॉट टू मच हॉट. लेकिन अब जो अर्थ जो है इट शोज सम मोमेंट्स, that is that when it moves around the sun, some part आप यहाँ पर हम देखते हैं when it is towards the sun, यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी रहती है. और when during revolution हम क्या देखते हैं कि दूसरा पार्ट जो होता है it remains somewhat away from the sun directly, वहाँ पर हम देखते हैं कि winter season होता है. And same is the case in the frigid zone, it takes almost
हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि सन्स की जो रेज होती है दे ऑलमोस्ट लूज देयर हीट और यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इज द लैटिट्यूडनल फैक्टर सेम व्हेन वी विल सी as we go up the earth's surface, when we go higher and higher, there is the decrease in the temperature. ये भी देखा गया है लैटिट्यूड में, ये देखा गया है कि एक लैटिट्यूड से फ्रॉम द इक्वेटर, एक लैटिट्यूड से इट इज 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री नॉर्थ, दोनों ये है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के दरमियान जो फर्क है टेम्परेचर का, दैट इज 10 डिग्री फॉरेनहाइट. इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड, दैट द टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के दरमियान जो टेम्परेचर जो आता है, जो डिफरेंस जो आती है, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम इज द केस एज वी मूव अपवर्ड्स, हायर जब जितना हम जाते हैं, देयर इज ऑल्सो द डिक्रीज इन द टेम्परेचर मेनली इन द ट्रोपोस्फीयर. It is in this troposphere what we will see, जो अर्थ सरफेस हम देखते हैं 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक, हम ये देखते हैं कि जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, देयर इज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर. नाउ और टोपोग्राफी भी है, वेजिटेशन भी ज़्यादा है, जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर हम देखते हैं कि डाइवर्स एनिमल्स, वहाँ पर डाइवर्स ऑर्गन्स वहाँ पर पाए जाते हैं. जहाँ पर हम देखते हैं देयर इज द स्कैर्सिटी ऑफ दिस वेजिटेशन, वहाँ पर हम देखते हैं कि उतने लिविंग ऑर्गन वहाँ पर पाए नहीं जाते हैं. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, दे आर फाउंड इन very temperature. There are some organisms which are found to the जो उनका ऑप्टिमम रेंज जो है, इन द रेंज दैट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर. जो हम मैक्सिमम जो हम देखते हैं टेम्परेचर है, जहां जिस रेंज में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स दे कैन सर्वाइव इजीली. बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जहां हम देखते हैं कि विच आर फाउंड इन दी व्हाट वी कॉल्ड एज दी हॉट स्प्रिंग्स या थर्मल स्प्रिंग, जिनका हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, जहां पर हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर में गो अबव 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री सेंटीग्रेड. देयर आर सम हाइड्रोथर्मल ओशनिक वेंट्स, जहां पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर में गो अबो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर भी हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं. दीज मेनली इंक्लूड सम बैक्टीरिया, these mainly include what we call as the cyanobacteria or bilirubin bacteria. We will see what we call as this cysts. We will see some protozoans. We will see some dry seeds, and these are some which can found there. And there are some organisms which can be found sub-zero temperature, that is within the range of minus 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं. नाउ जितना टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वो किल हो जाते हैं ड्यू टू द डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ड्यू टू द डिनेचुरेशन ऑफ एट द हायर टेम्परेचर, वहां पर हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे डू नॉट सर्वाइव ड्यू टू द डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. Also at very low temperature, that is at the freezing, below freezing temperature, वहां पर हम क्या देखते हैं कि many organism हम क्या देखते हैं, जो उनके body fluids होते हैं, body fluids they get frozen except some what we will see this dry seeds या cysts में हम देखते हैं कि they do not get frozen because उनमें हम देखते हैं कि body की जो fluids होते हैं they are not found there. So these are what are the ranges जहां पर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. what are the various factors.
Now, how this temperature, how does it affect the organisms? पहले हम थोड़ा बहुत जिक्र कर लेंगे in case of effect of organism, or sorry, effect of temperature on animals. Animals में हम देखते हैं कि that this temperature it plays an role, its role. First one, अगर हम बात कर लेंगे रिप्रोडक्शन, ये जहां पर हम ये देखते हैं कि दैट दिस टेम्परेचर प्लेज इट्स रोल। मनी ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि जो उनके गोनेड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव गोनेड्स, अब वी विल सी जो एक्टिविटी होती है किसकी, एक्टिविटी ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ब्लो, BLOW, ब्लो फ्लाई विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, वहां पर हम ये देखते हैं कि जो एग लेइंग कैपेसिटी होती है, एग लेइंग कैपेसिटी इन फीमेल्स, वो देखा गया है कि दैट विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एग लेइंग कैपेसिटी भी एनहांस हो जाती है तो द टेम्परेचर रेंज ऑफ अबाउट 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जितना हम देखते हैं कि अगर इससे अबोव भी टेम्परेचर चला जाएगा, कभी कभार ये भी देखते हैं कि फिर हम क्या देखते हैं कि फिर उस टेम्परेचर के एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि जो एग लेइंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। हाँ, वी हैव गॉट सम विंटर एग्स। विंटर एग्स की अगर हम बात कर लेंगे कि सम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ले द एग्स इन द विंटर एग्स, एंड फिर हम क्या देखते हैं कि दैट दीज एडल्ट जो होते हैं दे वैनिश, दे वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन जो एग्स जो होते हैं दे सर्वाइव, वो अनफेवरेबल कंडीशंस आसानी के साथ ओवरकम कर लेते हैं विद द ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। दीज एग्स हम क्या देखते हैं कि वो फिर हैच हो जाते हैं एंड दे गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिजम्स। This was the on the reproduction. So in the reproduction what we will see, जो गोनेड्स होते हैं, जो एक्टिविटी होती है स्पर्मेटोसाइट्स की, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द ब्लो फ्लाई, वहां पर हम क्या देखते हैं, जो एग लेइंग कैपेसिटी होती है किसकी, फीमेल की, वो एनहांस हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और ये देखा गया है कि अब जब टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, उसकी हम देखते हैं कि वो एग लेइंग कैपेसिटी वो अच्छी खासी रहती है। लेकिन जब टेम्परेचर इससे ज्यादा चला जाता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, जो हम देखेंगे एग लेइंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। और कभी कभार हम ये देखते हैं कि विंटर एग्स जो हम देखते हैं, विंटर एग्स की सम ऑर्गेनिज्म दे ले द एग्स इन द विंटर, वहां पर हम क्या देखते हैं कि उसमें हम ये देखते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो एग्स होते हैं दे सर्वाइव दैट अनफेवरेबल कंडीशंस। फिर क्या हम क्या देखते हैं कि दैट दे अनफेवरेबल कंडीशन वहां पर हो जाता है एंड देन विद द ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन वो एग्स हैच हो जाते हैं एंड देन इट गिव्स व्हाट वी विल कॉल एज द वंस हम देखते हैं नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद नाउ सेकंड वन, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Some organism we will see जो growth and development है, it is also temperature dependent. It is also temperature dependent. For example, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, in Austria, वर्जीनिया, वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द बॉडी जो होती है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो बॉडी लेंथ होती है इट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर तक, जो बॉडी लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड,
दिस वॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। थर्ड अगर हम बात कर लेंगे दैट इज थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन की अगर हम बात कर लेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो हम एक्टिविटी जो हम देखते हैं कि उनकी जो हम सर्वाइवल जो हम देखते हैं इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज इन वेरियस टेम्परेचर्स। On that, depending upon this thermal regulation, we can classify the organism into different categories. First one, what we call as the eurythermo. We have got this eurythermal organisms. यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स की अगर यूरिथर्मल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच सर्वाइव द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। दे कैन survive, they can live in the wide range of temperature. They live in the extremes of the temperature, in the very hot temperature as well as they can survive in the very cold temperature. For example, we have got the human beings rather. Human beings, what we will see, it can survive in the temperatures एक्सट्रीम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी, और इन द वेरी कोल्ड टेम्परेचर में भी हम देख सकते हैं कि वी विल सी द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द व्हाट वी कॉल एज सहारा डेजर्ट, इन दिस व्हाट वी कॉल एज दिस साइबेरिया में हम देख सकते हैं, वी विल सी इन द द्रास। सेकंड वन जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज द मेसोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। मेसोथर्मल ऑर्गेनिजम्स की हम बात क्या करते हैं कि व्हाट वी विल सी दैट दे कैन सर्वाइव, व्हाट वी विल सी इन द हॉट समर्स एंड द कोल्ड विंटर्स। हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। Then we have got third one जहां पर हम बात करें that is called as the microthermal organisms. Microthermal organisms are those organisms which can survive in the warm या mild summers हम बात कर लेंगे and cold winters, mild summer। फिर हम देखते हैं कि what we call as the macrothermal या megathermal organisms। megathermal organisms हम ये कहेंगे which can survive in the what we call as the very hot temperatures। और हमारे पास एक और भी है that is called as a stenothermal organisms। These are those organisms which can survive in a what we call as a small range of temperatures। wide range of temperature में survive नहीं कर सकते हैं but they can survive in a very short what we call as the range of temperatures। चलो now एक और हमारे पास in case of the plants in case of the animals what we have got one more fourth one that is the metabolism। अब जो हम देखते हैं कि जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग द टेम्परेचर राइज इंक्रीज इन द टेम्परेचर जो एंजाइमिक एक्टिविटी होती है इट गेट्स एनहांस्ड एंड अब हमारे पास दोज बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो दो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं विच आर व्हाट वी विल सी एंजाइमिक विच ऑकर्स व्हाट वी विल सी इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स। बट जो हम देखते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी जो होती है इट इज एट ऑप्टिमम जो होता है जो एंजाइम एक्टिविटी होती है इट इज ऑप्टिमम एट द हायर टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंजाइमिक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी एंड when there is the increase in the enzymic activity metabolic rate भी अच्छी खासी होगी। 5 thermal migration।
अब हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स ये भी होते हैं, दे माइग्रेट, दे ट्राई टू ओवरकम दिस व्हाट वी कॉल एज दिस एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, वी हैव गॉट नॉकटर्नल एनिमल्स. नॉकटर्नल एनिमल्स में हम क्या देखते हैं कि दीज आर दोज एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. ये वो एनिमल्स हम देखते हैं ज़्यादातर कि विच आर मेनली फाउंड इन द वेरी एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, जहाँ पर हम देखें जो डे टेम्परेचर जो होता है इट गो बियॉन्ड ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मेनली इन द डेजर्ट एरियाज में हम देखते हैं. इन दो डेजर्ट एरिया जहाँ पर हम देखते हैं जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज वेरी hot or very high temperature, they remain inactive during the days. They are mainly found in the burrows. वो burrows में रहते हैं. When the night came, जिस वक्त हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, दे बिकेम एक्टिव. या कभी कभार हम ये देखते हैं कि जो हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की या एनिमल्स की फ्रॉम द वेरी कोल्ड टेम्परेचर, हम देखते हैं कि दे कम टू दैट प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज समवट हायर. माइग्रेशन होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ उस इलाके से चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ठंड होती है और वो उस इलाके में आते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बहुत अप होता है. या कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टू अवॉइड दैट वेरी हॉट टेम्परेचर, वो उस इलाके से चले जाते हैं और उस इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर अ लिटिल बिट डाउन होता है. एक और हम ये देखते हैं बिहेवियर, हम देखते हैं बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि कुछ एनिमल्स का जो बिहेवियर है इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट. हाँ, यू माइट हैव सीन रैटल स्नेक. यू विल बी वेल अवेयर अबाउट द वाइपर. वाइपर में आपने क्या देखता है कि दैट इट रिकॉग्नाइज इट स्प्रे, ये अपने शिकार को पहचान लेता है ड्यू टू द